So let's start today's topic, that is factors and multiples. First of all, let me know what do you know about multiples. What are multiples? Let me know. Naman, what do you know about multiples? First of all, we are going to discuss multiples. What is multiple? The product of two or more number. Listen very carefully. The product of two or more number is the multiply of the number that are multiplied. For example, we can learn this with the help of this example. For example, 6 into 5 is equal to 30. It means 30 is a product. 30 is the product of 6 into 5. That is called multiple. 30 is a product of 6 into 5. This is multiple. Or we can say 6 into 5 product is 30 and it is multiple. And 30 is multiple of number 5. Right? There are basically 4 or 5 properties of multiple. What are the properties? Number 1 property is every number is multiple of 1 or number itself. Means हर नंबर एक तो 1 का मल्टीपल होता है और एक अपने आप itself मल्टीपल होता है. Suppose 20 into 1 is equal to 20. It means 20 is a multiple of 1. In the same way, 20 is multiple of itself number 20. This is the first property of multiple. Second property of multiple is the smallest multiple of a number is the number itself. For example, I am writing over here 4 into 1 is equal to 4. 4 into 2 is equal to 8. 4 into 3 is equal to 12. 4 into 4 is equal to 16. Now you can see the multiple of 4s are 4, 8, 12 and 16. But the smallest number is 4. Right? तो second property क्या हुई हमारी कि जो हमारा first multiple होता है उस नंबर का वो smallest multiple होता है. ठीक. नेक्स्ट है क्या है? The multiple of any number is endless. Endless कैसे है? हम 4 into 1 से लेके 1000 तक आप कहीं पर भी multiple क्या है? Multiple is just like a table. है ना? हम tables करते हैं ना 4 into 1, 4 into 2, 3, 4, 10 और आगे तक जहाँ तक आप ले जा सकते हैं. एंडलेस होती है. इसका कोई भी ऐसा रेंज नहीं है कि बस यहाँ पर ये फिनिश हो जाएगा. जब तक इसको मल्टीप्लाई हम करते चले जाएंगे. ठीक है. तो ये हो गया हमारा मल्टीपल. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फैक्टर. व्हाट इज फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या होते हैं? सपोज नंबर ए. लिसन वेरी केयरफुली. सपोज नंबर ए इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय नंबर बी. सपोज नंबर ए. Look at here. Suppose number A, it can be completely divided by number B. अगर number A जो है वो पूरा डिवाइड किया जा सकता है number B से, तब क्या होगा? B will be called factor of number A. तो B जो है वो हमारा A का फैक्टर बनेगा. कैसे बनेगा? Suppose I am writing here 6 into 5 is equal to 30. अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 6 into 5 is equal to 30. अगर मैंने ये लिखा यहाँ पर, it means क्या हुआ कि 30 can be divided by 6. In the same way, 30 can be divided by 5. और वो भी completely divide हो जाएगा. कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचेगा. फैक्टर तभी होता है जब रिमाइंडर शुड बी 0. 0 रिमाइंडर आना चाहिए. ठीक. तो 30 नंबर ऐसा हुआ कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा. इट मीन्स क्या कहलाएगा कि 6 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर 30. 6 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर 30. ये नंबर 30 के फैक्टर हुए.
Why? Because 30 can be completely divided by 6 as well as divided by 5. It means 6 and 5 are the factors of number 30. ठीक. अब सपोज हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड फैक्टर्स, हम फैक्टर फाइंड आउट कैसे करेंगे. ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है ना, हाउ टू फाइंड आउट फैक्टर्स. हम क्या करते हैं, फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन की हेल्प लेते हैं. बेसिकली मल्टीपल एंड फैक्टर्स आर क्वाइट डिफरेंट. ये तो हमें समझ आ गया कि दोनों चीजें एकदम डिफरेंट है. इन दोनों चीजों का कहीं से कहीं तक भी आपस में इस तरह से लिंक नहीं है कि हम ये कह दें कि ये दोनों चीजें सेम है. नहीं, both are quite different but both are correlated with each other. ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं. कैसे कोरिलेट करती हैं? अगर हमको फैक्टर पता करना है तो हमको मल्टीप्लिकेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी ना. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24, कि आप 24 के सारे फैक्टर्स निकालें, तो आप क्या करेंगे? ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर 24, हमें नंबर 24 के सारे फैक्टर पता करने हैं. तब हम क्या करेंगे जानते हैं? हम फटाफट से जो हमारा 1 2 3 4 5 6 का टेबल है उसको हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे. हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते चले जाएंगे. अब हम करेंगे मल्टीप्लाई. कैसे करेंगे? 1 के टेबल में हम देखेंगे 24 कैसे आएगा. जब 24 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा. ठीक. इसके बाद देखो 2 के टेबल में कहाँ आता है? 2 के टेबल में कहाँ आएगा? जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आएगा 24. 8 के टेबल, हाँ 24 है ना. फिर 3 के टेबल में कहाँ आएगा? 3 8 जा 24. 4 के टेबल में कहाँ आएगा? 4 6 जा 24. अब देखो 5 के टेबल में कहीं 24 हमको मिलता है? Tell me, can you get number 24 in the table of 5? No, not at all, not possible. तब क्या हो जाएगा? इसमें हमारा नहीं आता है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं. इसके बाद हम फिर देखेंगे 6 4 जा 24. अब देखो एक चीज देखने वाली क्या होती है, हम कहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे कि हमें पता होना चाहिए. We have to find factors until we start getting the same numbers. कैसे? 6 into 4 is equal to 24. आप ये देख रहे हो. और 4 into 6 भी 24 होता है. इसी तरह से 7 के टेबल में भी नहीं आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करना हमारा बेकार है. और अगर हम 8 से करेंगे तो फिर हमारा वही आ जाएगा 8 चलेगा. मतलब ये भी सेम आ जाएगा और ये भी सेम आएगा. इसका मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. हमें गेटिंग मिलना स्टार्ट हो गया हमारा 24. तो बस हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे. इसके बाद हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे. वो कैसे करते हैं? वी विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हम ऐसे चलेंगे अभी. ये टॉप टू बॉटम. तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ नंबर 24 आर. कौन कौन से फैक्टर बने? देखो ये तो है नहीं हमारा, इसको तो हटा देंगे. ठीक. 6 यहाँ से चलेंगे ना टॉप टू बॉटम, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4. इसके बाद हम चलेंगे बॉटम टू टॉप. अब यहाँ से चलेंगे, अपोजिट चलना स्टार्ट करेंगे. यहाँ से देखो ऐसे. जब यहाँ से चलेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 8 12 और 24. ये हो गए हमारे 24 के फैक्टर्स. 1 2 3 4 6 8 12 24. This is the method to get factor of any number which is given over here. We will start multiply. We will start table. हम टेबल स्टार्ट कर देते हैं. फटाफट से हम सारे काउंट करना शुरू करते हैं कि 1 के टेबल में वो नंबर आ रहा है या नहीं, 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, 3 के टेबल में आ रहा है कि. जैसे ही हमको रिपीटेड मिलना स्टार्ट हो जाता है हम अपना मल्टीप्लिकेशन वहीं स्टॉप कर देते हैं और वहीं से हमारे सारे फैक्टर हमें फाइंड आउट हो जाते हैं. सबसे पहले हम जिसको लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले टॉप टू बॉटम लेंगे, फिर बॉटम टू टॉप ले लेंगे. ये हमारा हो जाता है मल्टीप्लिकेशन. ठीक. इससे हम फैक्टर्स आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं.
I hope it is clear in your mind difference between multiple and factors.